नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं जया। इस वीडियो में हम आईसीएच गाइडलाइन और आईसीएच गाइडलाइन की स्थापना किसने की थी इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। फर्स्टली कंटेंट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, आईसीएच गाइडलाइन, आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइंस एंड समरी। Firstly, what is the full form of ICH? Everybody knows about it, but definitely I will say it. The International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human Use. It is the ICH guideline full form. पहले से ICH गाइडलाइन का फुल फॉर्म था द इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल, बट अभी अपडेट हुआ है फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। In that, this collaborating effort between regulators, pharmaceutical industry and the drug develop experts from Europe, Japan and United States to develop the harmonized guideline for the development, registration and post-approval of the pharmaceutical products. In ICH, there is 4 aspects: quality, safety, efficacy and multidisciplinary guideline. In this guideline, provide a framework for drug develop to design, study, collect data and analyze result according to guideline in essential for gaining regulatory approval for the new drug and for maintaining post approval safety and efficacy. Right? इस ये जैसे कि ये हमको पता है कि 1980 से ही ये रेगुलेटरी एजेंसीज ने काम करना स्टार्ट किया था, बिकॉज ऐसा नहीं था कि आईसीएच से पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी, रन नहीं हो रही थी, बट क्या था, सब लोगों ने अपना अपना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे। इन तीनों एजेंसीज ने सोचा कि क्यों ना हम एक ही हार्मोनाइज पाथ को कंटिन्यू करें और उसके बेसिस पर ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रेज करें। तो ये तीनों एजेंसीज कौन? जापान, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट ने बैठक बिठाई कहाँ पे? ब्रुसले और बेल्जियम में 1980 से ही, और यहाँ उस मीटिंग में सारे रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल्स एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी और उन्होंने अपना योगदान दिया था। अब नाउ अ डेज more than 20 participants countries are included to harmonize and they are follow ICH guideline to run our pharmaceutical companies. In ICH guidelines, there are 4 aspects: quality, safety, efficacy and multidisciplinary. Importance of guideline. ICH guidelines are not legally but bound with regulatories which helps to new medicine approval in the market, which follows the compliance and good manufacturing practice, which comes under the ICH guidelines. Now, what is quality guideline? Quality is harmonization achievement in the quality area include pivotal milestones such as the conduct of the stability study. So it means quality guidelines mostly dependent on in GMP and risk management. Q1A to F, it's come under the stability. So stability for what? New drug substance. So ICH guideline, there is a 4 aspects as I mentioned earlier. Now we talk about the quality. So in that quality, there is a 14 quality guidelines. First is stability. So we will talk about the stability quality guideline. So Q1A से Q1F तक आता है स्टेबिलिटी। अब वो स्टेबिलिटी के अंदर भी सब पार्ट्स हैं। स्टेबिलिटी किसकी? स्टेबिलिटी टेस्टिंग किसकी होती है? ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट की। फिर स्टेबिलिटी मीन्स कि हम उसके अंदर क्या क्या करेंगे? फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे किसका? ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट का। फिर न्यू डोजेस फॉर्म भी आएगा, वो भी हम स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। इट्स कम अंडर द Q1C. नाउ ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर व्हाट? ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट. Q1E, evaluation of data, stability data. And lastly, Q1F, stability data package for registration, application in climate zone. And वो climate zone कौन सा? 3 and 4. Now secondly, in quality itself, analytical validation. नाम में ही पता चलता है analytical का validation. So firstly मैं बता दूँ, हर quality के वर्ड के आगे लिखा है R1, R2, वो क्या है? EWG, वो क्या है? R1 मतलब रिवीजन 1,
रिवीजन 2, उस गाइडलाइन का भी रिवीजन हुआ है और वो अपडेटेड वर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, राइट। एंड EWG अब क्या है? एक्सपर्ट वर्क ग्रुप। तो आप लोग ये देखना कि Q1, R1, 2, 3 इट्स रिवीजन एंड EWG लिखा है, तो वो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है जो उस पर्टिकुलर गाइडलाइन की ये काम कर रहे हैं। द एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिवीजन ऑफ Q2, R1 एनालिटिकल किसका? वैलिडेशन का। नाउ इम्प्योरिटीज सी, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि Q1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और वो किस लिए यूज होता है। इट्स वेरी इजी याद रखने के लिए। हम सारी चीज़ें किसके लिए करें? न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट के लिए। तो इम्प्योरिटी भी हम किसका देखेंगे? न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट एंड रेसिड्यूअल सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें कि Q3A to E इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज में कौन से? इम्प्योरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंस, इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट एंड गाइडलाइन फॉर रेसिड्यूअल सॉल्वेंट। एंड R9 जो रिवीजन 9 है Q3C का, मेंटेनेंस ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, मेंटेनेंस ऑफ द गाइडलाइन फॉर रेसिड्यूअल सॉल्वेंट। इट्स वेरी इजी टू मग अप, राइट, फॉर इंटरव्यू एंड फॉर योर एग्जीक्यूशन टाइम। क्वालिटी गाइडलाइन फॉर इन इम्प्योरिटी इटसेल्फ, गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज। अब एलिमेंट्स होती है उनकी इम्प्योरिटीज। Q3D मेंटेनेंस ऑफ एक्सपर्ट वर्क ग्रुप, मेंटेनेंस ऑफ द गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज। Q3D is training implementation of guidance of implementing elemental impurities, and E1 is assessment and control of extractable and leachable for pharmaceutical and biologics. It comes under the impurities. Fourth is Q4 pharmacopoeia, and we know about there is a huge pharmacopoeias which follows in the pharmaceuticals, right? So in this there is A to B pharmacopoeia. So A is pharmacopoeia of harmonization. Harmonization, its word it stands for harmonize all the things. For comes under the ICH guideline. B में annexures है, अब annexures के भी रिवीजन लिए गए हैं और वो annexures Q4B भी annexures कितने हैं? 14 annexures होंगे। ओके और ये सारे एनेक्सर्स कम्स इन द फार्माकोपिया एंड देन उनकी रिवीजन हुआ है आईसीएच गाइडलाइन की किसके लिए? सॉल्वेंट, ऐश, एक्सट्रैक्टेबल, XYZ की चैप्टर्स हैं जो मेंशन इन फार्माकोपियाज में, जो विच इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फिफ्थ वन इज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सो Q5 इट्स Q5 is biotechnology product of quality. So Q5A से E तक में ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो फॉल होते हैं ICH गाइडलाइन 5 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायरल सेफ्टी इवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ड्रिवन फ्रॉम सेल लाइन ऑफ ह्यूमन और एनिमल ऑरिजिन, राइट। सो इट्स फॉल अंडर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे हमने इलाबरेट करके रखा है कि अब 5 के अंदर क्या क्या आता है। तो सेल लाइन के लिए सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑरिजिन, एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इन सेल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA डिराइव्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स। सो अभी हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं सेल लाइन, ह्यूमन और एनिमल ऑरिजिन के, तो हम उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी करेंगे। इट्स ऑल्सो कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड उसके कैरेक्टराइजेशन होंगे, वो यूज़ होंगे बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, और उसका हम लोग स्टडी करेंगे और वो सारा फॉलो होगा ICH गाइडलाइन Q5 से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन फॉर व्हाट? ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। हमने ड्रग सब्सटेंस से ड्रग प्रोडक्ट में हमने अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स किया है जो फॉल होता है स्पेसिफिकेशन में, एंड वो ही हम उसको एज अ रेफरेंस लेके अपना प्रोडक्ट की हर एग्जीक्यूशन, हर एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर जाते हैं। सो स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अर्लियर फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट, केमिकल सब्सटेंस। अब Q6B स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल। एक ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट के लिए है एंड दूसरा बायोटेक्नोलॉजी जो Q5 में बताया था मैंने।
7th, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ICH गाइडलाइन क्वालिटी का है, जो हर जगह पे, चाहे वो R&D हो चाहे वो GMP हो, इट्स वेरी मैंडेटरी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एंड देन इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के क्वेश्चंस जो ओपनली ICH गाइडलाइन में पूछे गए हैं, जो इसमें मेंशन किया है। नाउ 8th इज फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। इन दैट Q8 इज फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। उसके अंदर सारे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी क्राइटेरिया, जो प्रोसीजर है, इट्स मेंशन्ड हियर ओनली। 9th, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। Guys, quality risk management is very important tool in ICH because रिस्क मैनेजमेंट किसका? क्वालिटी का, जो गवर्न होता है ICH गाइडलाइन के थ्रू, जो वर्क होता है इन GMP, राइट। सो ये इसकी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट comes under the ICH guideline and we follow the same. 10th one is pharmaceutical quality system. Here is mentioned. 11th one is development and manufacturing of drug substance. So in that development and manufacturing of drug substance means मतलब chemical entities and biotechnology or biological entities, and then उसके justification and selection of the manufacturing and drug substance which follows the ICH guideline Q11. 12th one is life cycle management, technically and regulatory consideration for pharmaceutical product life cycle management. 13th number for ICH guideline is Q13, continuous manufacturing of drug substance and drug product. हमने एक बार अपना प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब नहीं कि स्टॉप हो गया। वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट, सो वी फॉल अंडर द ICH गाइडलाइन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to improve and give the betterment and better result to patient, right? So continuous manufacturing of drugs substance and drugs product falls under this guideline. Q13 and Q14 is the upgrade and new point is added in the ICH guideline. पहले 2017-2018 तक में 2000 Q12 तक ही था, then 2019 से Q13 and 14 लॉन्च हुआ है, एंड देन करेंटली टू Q14 कन्फर्म्ड एंड PDF कॉपी अपडेट हुआ है ICH गाइडलाइन के अंदर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट, इट्स लाइक हमने पढ़ा था Q2 में एनालिटिकल प्रोसीजर जो Q2 है वो फॉल होता है Q14 में। एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिवीजन Q2 गाइस, जो एज मैंशनड अर्लियर Q1, 2, 3 जो भी है उसके आगे में R1, R2, EWG लगाया है। उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई पूछता है तो डोंट बी हेजिटेट कि अरे ये क्या है। इट्स रिवीजन एंड एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। सो I mentioned quality, ICH guideline quality. Now in next video I will definitely tell about the safety, efficacy and multidisciplinary guideline. So this second part of ICH guideline video comes soon. Thank you so much. So before I closing this video, I summarize the ICH guideline. So in that, as I mentioned the full form of ICH guideline, these guidelines cover various aspects of drug development including preclinical testing, clinical trials, stability testing and manufacturing process. इन सेफ्टी में हम क्या देखते हैं? कार्सिनोजेनिसिटी, टॉक्सिडोजेनिसिटी। हम एफिकेसी में क्या देखेंगे कि हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स देखेंगे, एंड हम मल्टी डिसिप्लिनरी में हम क्या देखेंगे? नॉन क्लिनिकल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स फॉल्स इन ICH गाइडलाइंस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। आपके लाइक एंड शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड शेयर विथ यू माय फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए एंड आप अपना एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।